Hello students, welcome back to our economics lecture. Our today's topic is significance to the law of DMU. See, in last lecture, we studied 5 criticisms or demerits, disadvantages of law of DMU. At the same time, there are some usefulness of law that we are going to study in this session. Okay, let's get started. Number 1, it is useful to the consumer. Law of DMU is useful to consumer. How? It is useful to consumer so that consumer can try to maximize his satisfaction in limited resources. Because of law of DMU, he will try to maximize his satisfaction in limited resources. Because see, unnecessary having more and more, is it going to give any utility? No. So he will try to satisfy his want in limited resources and he won't waste it. Okay, so that is what we learn from this law of DMU. Okay, see here, consumer knows that because of this law, consumer comes to know that utility goes on decreasing, so he will not waste his money. ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज, वो अपना जो भी कुछ सेटिस्फैक्शन है वो कम से कम रिसोर्सेस में सेटिस्फाई करने का सोचेगा, वो कुछ वेस्टेज नहीं करेगा, क्योंकि ये लॉ से उसको पता चला कि यूटिलिटी मेरी जो है वो क्या होती रहेगी, कम कम होती रहेगी. ओके, सेकेंड, इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट. व्हाई इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट? Okay, it is useful to the government for framing tax policies, price policies and trade policies. ओके, सो यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसीज फ्रेम करना होगा तो गवर्नमेंट को लॉ ऑफ डीएमयू का नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू पता चल रहा है कि कोई भी कमोडिटी कंटिन्यूसली कंजम्पशन करेंगे तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट को भी पता चलेगी कि कब यूटिलिटी किसकी कंज्यूमर की कम होगी, उस हिसाब से गवर्नमेंट कैन फ्रेम द पॉलिसीज. That's how it is useful to the government. Third is it explains us about paradox of value. Very important. Okay, what is paradox of value? Paradox of value is difference between value in use and value in exchange. Very important concept. Okay, how does DMU explain us about paradox of value? See, there are certain things which have very much value in use but less value in exchange. Okay, take for example air. See, air is having immense value of use but very less value in exchange. Okay, if I tell you ये लो भाई खरीदा, ये लो, ये देखो भाई मैंने हवा भरी है, 10 रुपए में खरीदो. ओके, कोई खरीदेगा? Nobody. Okay, nobody will value it, right? Okay, so very intense value in use but very less value in exchange. Okay, and there are certain things which have very much value in exchange but very less value in use. जैसे मेरे एयर का हवा, वो एग्जांपल बोला कि मैंने हवा भरी, एक गुब्बारे में हाथ में हवा भरी, बोली कि ये 10 रुपए में हवा ले लो, कोई खरीदेगा क्या? नहीं. बराबर, राइट और रॉन्ग? कोई खरीदेगा नहीं. वैसे मैंने ये पैराडॉक्स एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो वैसे ही मैंने बोला कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका वैल्यू इन यूज ज़्यादा होता है बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है. यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ कि कम कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं, जैसे एयर का वैल्यू इन यूज ज़्यादा है, उसका यूज ज़्यादा है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू कम है. वैसे ही अगर मैं गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का एग्जाम्पल दी थी तो उसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है बट यूज ज़्यादा है क्या? नहीं. Okay, take example of gold, diamond jewelry. They have very high value in exchange but very less value in use. Okay, नहीं भी अगर सोना डाला तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? हम लोग जी नहीं सकते क्या? जी सकते हैं. So this is what paradox. ओके, समझ में आई बात? तो ये वैल्यू ऑफ पैराडॉक्स या फिर बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू एक्सप्लेन करने के लिए लॉ ऑफ डीएमयू इज वेरी यूजफुल. ओके, देन द लास्ट पॉइंट इज इट इज द बेसिस ऑफ डिमांड. हाउ इट इज बेसिस ऑफ डिमांड? यू नो what is the law of demand? You know what is the law of demand? Okay,
It is very simple. We are going to study in next chapter. In demand analysis, we are going to study law of demand. See, when price rises, demand fall. And when price falls, demand rises. जब भी प्राइस बढ़ती रहती है, डिमांड कम होता है. और जब भी प्राइस कम होती रहती है, डिमांड क्या होता रहता है, बढ़ते रहते हैं. ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड. सो नाउ because of law of diminishing marginal utility, a consumer will buy an additional unit at which price lesser price, okay, at a which price, lesser price, okay. why means ऐसा कैसे, okay, आप लोग मुझे पूछेंगे ऐसा कैसे मीन्स, okay. तो वो कम प्राइस में ही क्यों परचेस करेगा. सी, बिकॉज in every additional unit, okay, marginal utility is going to decline. marginal utility additional unit consume करने के बाद क्या होती है, कम होती रहती है. okay, so when you are not getting any utility, why you are going to spend more money. समझा. यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो एक्स्ट्रा कंजम्पशन के बाद अगर यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो मैं ज़्यादा पैसा दे के क्यों खर्चा करूँ. आई बात समझ में. सो दैट इज व्हाट इट इज बेसिस ऑफ डिमांड. डिमांड का मैंने आपको लॉ बताया इन शॉर्ट में. ज़्यादा प्राइस होगी तो कम डिमांड करते हैं और कम प्राइस रहेगी तो ज़्यादा डिमांड करते हैं. बट लॉ ऑफ डीएमयू से हम लोग क्या सीखे हैं कि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद यूटिलिटी कम होने वाली है, मिलने ही नहीं वाली है, कम होने वाली है. तो हम लोग ज़्यादा पैसा खर्चा करके वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे क्या, नेक्स्ट एडिशनल प्रोडक्ट नहीं, उल्टा हम लोग कम प्राइस वाला प्रोडक्ट परचेस करेंगे. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ओके, तो यहाँ पूरा अपना लॉ ऑफ डीएमयू क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है. ओके, तो यहाँ तक सबको समझा होगा. ओके, ऐसा आशा करती हूँ. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. ओके, उसमें पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स. ओके, थैंक यू.